So anyhow, good afternoon again. Let's start with the topic. We were doing NetBeans and Java का NetBeans software कर रहे थे हम. We were doing some basic things. I'll just quickly take up the attendance. So in Java and NetBeans, we were doing certain common features which are मैं बता रहा था कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो जो बेसिक्स ABCD ऑफ द जावा NetBeans सॉफ्टवेयर कि हमें पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर व्हिच वी कैन यूज इन प्रोग्रामिंग. तो हमें बेसिक फीचर्स का पहले क्लियर होना चाहिए, देन वी कैन गो विद द प्रोग्रामिंग पार्ट. So we have done variables, we have done keywords, what are variables and how we are going to use them. आज हम करेंगे उसके बाद वाली चीज़ें जैसे we'll try to learn certain control statements. How will you write these statements? हम लिखेंगे कैसे और मैं दिखाऊंगा भी साथ में लिखते कैसे हैं, right? Let's move on to the book. So today we're going to start with the flow control. Now flow control is your these are basically the statements that we write to control the flow of one particular program, flow of instructions you can say. See, in a program everything goes in a sequence. आप एक प्रोग्राम के अंदर जो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो हमेशा सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं, right? It starts from the very first line, then after executing the first line it will go to the next line, then third line, then fourth line. So always a sequence is followed, right? इसको हम sequential access बोलते हैं, where everything comes in a sequence, right? But we have certain more options where we can break that sequence कि अगर हमने बीच में कुछ conditions डालनी है कि भाई अगर ये condition true हो जाती है then we'll go to some other part of statements, और अगर condition false हो जाती है then we'll go to some other part of statements. कि अगर true होने पे कुछ और statements run हो, false होने पे कुछ और run हो, तो ऐसी conditions भी हम लोग बीच में डाल सकते हैं, right? So Java basically provides us, or NetBeans provides us many of these statements. Like you can see here, एक छोटा सा एक real life example लिया है उन्होंने, like look outside the window. It's just a flow chart. Is it raining? If it is true, carry an umbrella, and if it is false, don't carry an umbrella. So it's just a situation कि अगर ये situation आई तो हमने ये किया, अगर situation नहीं आई तो हमने ये करना है. So similar things we are doing in this NetBeans also. We can put some conditions like this. अगर condition true होती है तो हम कुछ और statements run करेंगे, अगर condition false होती है तो हम कुछ और statements run करेंगे, right? So these are called as selection statements, right? तो selection में condition ज़रूर होती है. इसमें जो पहली statement है वो if else. If else is the statement which is used to write this condition, and if the condition is true then we'll write the instructions in one way, and if condition is false then we'll write the condition in else part. ठीक है, तो हम क्या करते हैं if लगा के उसके बाद वो condition लिखते हैं. ठीक है, let's take an example like if we want to find out के what is the if you want to find out the number entered is a positive number or a negative number, हम कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि जो नंबर हमने एंटर किया है is that number greater than 0? If it is greater than 0 we'll write it is positive, and if that number is less than 0 we'll write it is negative. So ये कंडीशन हमने बीच में डालनी है. वो हम कैसे डालेंगे? We'll write this if, and then here we'll write the condition कि जो भी नंबर है that number will have to save that number somewhere. एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, let's say x. If x is greater than 0, here we have to write the print statement कि print number is greater than 0 या number is positive. और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो हम नीचे इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे
कि print number is smaller, right? ये एक और एग्जांपल है। इफ परसेंटेज एक वेरिएबल लिया जिसमें कोई वैल्यू है, परसेंटेज है बच्चे की, अगर वो वैल्यू 40 से ज़्यादा है या इक्वल है तो दिस इज द प्रिंट स्टेटमेंट। हमने ये लिखा था पहले भी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखते हैं, तो ये प्रिंट करेगा क्या, पास्ट प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर इससे कम है तो यहाँ पे देयर इज नो अदर ऑप्शन रिटर्न, अदरवाइज देयर इज वन मोर वे कि अगर ये गलत हुआ तो क्या करना है। यहाँ पे सिर्फ हम ये चेक कर देंगे परसेंटेज अगर 40 से ज़्यादा है या 40 है, हम लिख देंगे पास्ट, ठीक है। ये आ गया वो दूसरा वाला। अगर वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो हम एल्स में लिखते हैं हम कुछ। लेट्स गो टू द एग्जांपल दिस, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, प्रिंट पास्ट, एल्स प्रिंट फेल्ड। नो बड़े ध्यान से देखो इसमें क्या किया हमने, इफ कंडीशन डाली। इफ कंडीशन की जो भी स्टेटमेंट है इट हैज टू बी रिटन इन दिस राउंड ब्रैकेट। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन करी। कर्ली ब्रैकेट का मतलब है फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू विद अ स्टेटमेंट व्हिच विल रन ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। और ये स्टेटमेंट रन होगी, ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट आ गई और हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दी। इसका मतलब ये इफ का जो इफेक्ट है इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कर्ली ब्रैकेट, इट विल एंड अप टू दिस ब्रैकेट। तो इस कर्ली ब्रैकेट के बाद, इस कर्ली ब्रैकेट से पहले जो कुछ भी है वो इस कंडीशन के ट्रू होने पर रन होगा, राइट। सिमिलरली इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन विल स्किप दिस, ये चीज़ नहीं प्रिंट होगी, हम सीधे एल्स पे जाएंगे, राइट। देख रहे हो कंट्रोल जंप हो रहा है, कंट्रोल, अदरवाइज एज पर द रूल एवरीथिंग मस्ट गो टू द सीक्वेंस, बट हेयर वी आर यूजिंग ए सिलेक्शन पार्ट। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी सो वी आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस लाइन, विल स्ट्रेट अवे गो टू एल्स। फिर एल्स के ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक मतलब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बीच में जो है दैट विल बी, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल रन, राइट। तो ये है इफ एल्स कंडीशन। इफ में कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट रन होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में जाएंगे, एल्स के ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है दिस वन फेल्ड वाली, दिस विल रन, फाइन। सो दिस इज वन सिंपल प्रोग्राम फॉर परसेंटेज कैलकुलेटर, fine, where we can print whether the number is the percentage of marks is greater than 40 तो पास, नहीं तो फेल, राइट। अब उसी में एक वेरिएशन है, यहाँ पे क्या किया है, here what we have done is we have added some more operators। ये दो एंड और दो लाइंस, इस दो एंड इज फॉर एंड कंडीशन, दिस टू लाइंस आर फॉर और कंडीशंस, राइट। सो this and is basically used where we want to give two conditions, दो रिलेशन शो करने हैं, दो कंडीशंस देनी है, तब हम ये and लगाते हैं या और लगाते हैं। अब इस केस में देखो क्या किया है, if के अंदर हमने दो कंडीशंस डाल दी ब्रैकेट्स में। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट क्लोज एंड परसेंटेज लेस देन इज इक्वल टू 60। तो अगर परसेंटेज 40 से ज़्यादा या 40 है, और दूसरी चीज है कि परसेंटेज अगर 60 से नीचे है, एंड शोज यू दैट बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, अगर ये वाली भी ट्रू हो जाती है, ये वाली भी ट्रू हो जाती है, तब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, राइट। सो ये एंड का मतलब ये है, एंड इज यूज वेयर व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू ओनली देन विल एंटर द this loop body, otherwise will not go into the loop body, right, will not go into the block। so तो इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है कि अगर बच्चे की परसेंटेज 40 या 40 से ज़्यादा है या 60 से कम है, मतलब 40 से लेकर 60 के बीच में है, 40 को हमने इंक्लूड करना है, 60 को इंक्लूड नहीं करना, तो फिर हम लिखेंगे पास इन सेकेंड डिवीजन। फिर उसके बाद एक और कंडीशन है, अगर 60 से ज़्यादा है या 60 के इक्वल है, विल राइट पास इन फर्स्ट डिवीजन, और अगर 40 से भी कम है तो विल राइट फेल, ठीक है। इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द डिवीजन इन विच द स्टूडेंट इज फ्रॉम द परसेंटेज।
तो एक ये प्रोग्राम हो गया, राइट। अब ये कुछ और एक एग्जांपल है, अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 विल सिंपली टाइप पास्ट एंड अच्छा, इसमें वेरिएशंस देखो क्या है। इसमें वेरिएशन ये है कि अब पहले वाला मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। इसमें देखो ब्रैकेट्स के, देखो कर्ली ब्रैकेट्स को, दिस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड एंड्स ओवर हेयर। दिस मीन्स इफ, इस वाले इफ का इफेक्ट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। आफ्टर दिस इफ इज ओवर। In this, if starts from here in this bracket, from this curly bracket and it ends up here. तो ये if जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है। ऐसे ही इसका स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, सब अलग अलग हैं। यहाँ पे थोड़ी वेरिएशन ये है कि if कंडीशन ये अगर ट्रू होती है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कर्ली ब्रैकेट। अब इसकी एंडिंग नहीं हुई अभी तक और एक और ब्रैकेट आ गई, तो इसका मतलब जब कर्ली ब्रैकेट बंद होगी तो वो पहले ये वाली बंद हुई, इसके बाद दोबारा क्लोजिंग कर्लिंग ब्रैकेट आएगी, फिर ये वाली बंद होगी, दूसरी देखो इतने है। तो दैट मीन्स ये इफ आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। दिस इज ऑल इनसाइड दिस इफ। सो वी आर बेसिकली नेस्टिंग द इफ। नेस्टिंग का मतलब है इफ के अंदर कुछ दूसरा इफ डालना, ठीक है। तब इसमें किया क्या है, ध्यान से देखो कि इफ़ योर परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, अगर परसेंटेज 40 से इक्वल या ग्रेटर है तो पहले तो भाई पास्ड प्रिंट कर दो। उसके बाद फिर से चेक करो, इफ़ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75 देन इसकी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब ये ट्रू होने पे सिर्फ ये लाइन चलेगी। इफ़ द मार्क्स और द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75 और इक्वल टू 75 तो विद डिस्टिंक्शन प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो दिस विल हैपन ओनली इफ दिस इज ट्रू, राइट। तो ये ट्रू होने के बाद ही अंदर वाला इफ रन होगा, नहीं तो नहीं होएगा, ठीक है। तो ये दिस इज नेस्टिंग ऑफ इफ के अंदर दूसरा इफ, नेस्टिंग ऑफ इफ, फाइन। एंड और यहाँ पे हमने ये बाहर वाला इफ भी बंद कर दिया। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला इफ भी नहीं चलना, हम सीधा एल्स पे आ जाएंगे। इस एल्स में लिखा है द प्रिंट फेल्ड। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इट द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड स्ट्रेट अवे, बिकॉज 40 से ज़्यादा भी नहीं है, 40 भी नहीं है, इसका मतलब 40 से कम ही होगा, ठीक है। तो नो नीड टू पुट एनी अदर स्टेटमेंट एनी अदर कंडीशंस, सो सिंपली विल पुट फेल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस लगाई है ना, तो इसकी बजाय अगर हम सिर्फ एल्स लिख दें तब भी वो सेम चीज़ रीड करेगा। दिस इज़ व्हाट लॉजिक बिल्डिंग इज़। यही हमने सीखना है कि हमने लॉजिक कैसे बनाना है, ठीक है। वी कैन राइट द स्टेटमेंट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, वी कैन राइट द सेम थिंग इन दिस फॉर्म। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, द वर्किंग इज डिफरेंट, ठीक है। दोनों सेम रिजल्ट्स देंगे। यही है प्रोग्रामिंग का जो मेन चीज़ है कि हाउ विल यू बिल्ड द लॉजिक, हाउ विल यू फॉर्म द स्टेटमेंट्स, कि कैसे आपकी जो प्रोग्राम है वो आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। दैट यू हैव टू थिंक ऑफ एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली, फाइन। सो ये क्लियर हो गया। इसके बाद इन्होंने ये दिस इज़ हाउ प्रोग्राम इज़ रिटन बेसिकली। इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें थोड़ी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने एडअप की हैं प्रोग्राम में। फ्रॉम हेयर द प्रोग्राम है स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है इंट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 400। टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 400 है। डबल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 346। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है उसकी वैल्यू 346 है। परसेंटेज इज इक्वल टू 0.0। तो परसेंटेज एक वेरिएबल लिया है जिसमें परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, उसकी इनिशियल वैल्यू 0.0 है। इनिशियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। जो जो वेरिएबल्स हमने यूज़ करने हैं उनकी एक इनिशियल वैल्यू देनी ज़रूरी होती है, तो हम इनिशियली उनको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर देंगे। फिर देन परसेंटेज इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ब्रैकेट क्लोज स्टार 100। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड को मार्क्स टोटल मार्क्स से डिवाइड किया,
जो भी आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, सो विल गेट द परसेंटेज इन दिस। उसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट परसेंटेज इक्वल टू प्लस परसेंटेज। अब ये ध्यान से देखो, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको। इफ यू सी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखो, जो पहली लाइन है वो ब्राउन कलर में है और जो दूसरा पार्ट है वो ब्लैक में है। सॉरी, ये जो ब्राउन कलर है वो क्यों है, बिकॉज ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अब ये इन्वर्टेड कॉमा डालने का मतलब क्या है, जो कुछ भी इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज इन द आउटपुट विंडो। तो जो आउटपुट विंडो होती है जहाँ पे आउटपुट आता है, आई विल शो यू दिस आउटपुट विंडो आफ्टरवर्ड्स। तो आउटपुट विंडो में ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो। सो वहाँ पे आपको प्रिंट दिखेगा स्टूडेंट 1 percentage equal to, ऐसे exactly in the same way it will, you will find the same wording, capital small some semicolon etc same। तो ये सेंटेंस आपको वहाँ प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद हमने लिखा है प्लस। प्लस का मतलब इसकी प्रिंटिंग के बाद क्या ऐड प्रिंट करना है, तो प्लस के बाद नेक्स्ट इज परसेंटेज। इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल एंड इट हैज ए वैल्यू। So if the variable is there and it is not written in inverted comma, तो उस variable की जो भी value है that will be printed। और इस percentage variable की value क्या है, हमने ऊपर calculate करी। जो marks obtained थे उसको total marks से divide किया, 100 से multiply किया, so that value will be printed। So output statement आपको कैसी दिखेगी, student 1's percentage is equal to जितना उसका percentage आया, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिंट स्टेटमेंट्स में, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वही स्टेटमेंट्स हैं दैट इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 पास्ट प्रिंट हो जाए, उसके अंदर फिर से इफ है, अगर 75 से ज़्यादा है तो विद डिस्टिंक्शन आ जाएगा, नहीं तो अकेला पास्ट लिखाएगा अगर 40 और 75 के बीच में आएगा तो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फेल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक सेम चीज़ हमने दोबारा लिखी है ये स्टूडेंट 2 के लिए, राइट। So this is how instructions are to be written, right? ये हम इसकी एक प्रैक्टिस भी करेंगे। I'll give you some questions to practice. Hope you have downloaded this NetBeans software till now. तो ये देखो ये आउटपुट विंडो है, ये ऊपर आउटपुट लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट 1 परसेंटाइल इज इक्वल टू जितना कैलकुलेट होके आंसर आया परसेंटाइज दैट वैल्यू विल कम, और पास्ट विद डिस्टिंक्शन आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया इफ एल्स का स्टेटमेंट। अब द थिंग इज दैट अगर मान लो मुझे बहुत सारी कंडीशंस देनी है, मुझे बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी है कि भाई अगर मेरी वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पे तो परसेंटेज के क्राइटेरिया कम है, मान लो ऐसे 20-25 के कंडीशंस डालनी है मुझे एक साथ, तो मुझे 20-25 टाइम्स इफ डालना पड़ेगा, राइट। सो दैट विल बी डिफिकल्ट एंड हजार्डस फॉर मी, राइट। इट विल बी डिफिकल्ट कि इफ यू हैव टू राइट इफ अगेन एंड अगेन, बार बार कंडीशंस देनी पड़ेगी। देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द क्लोजिंग ऑफ इफ, दैट कर्ली ब्रैकेट कहाँ ओपन करेंगे कहाँ बंद करेंगे, राइट। so so for to replace that, if we want to compare a value inequality multiple times, then we have another option called as switch statement, right. Now, switch statements is used to execute a block of code matching one value out of many possible values। यहाँ पे switch लिखा, फिर जो हमने मैच करना है उस एक्सप्रेशन को लिखा, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन करी, फिर एक कीवर्ड लिखा केस, केस के बाद पहला एक्सप्रेशन का आंसर,
मतलब इस एक्सपेंडिचर का आंसर अगर ये वाला वैल्यू हुआ तो ये स्टेटमेंट्स रन होंगी और हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देंगे मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं चलेगा अगर एक कंडीशन मैच हुई। तो मतलब बेसिकली वी व्हाट वी आर डूइंग इज स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू और ये जो केस के आगे हमने वैल्यू दी है इन दोनों को मैच करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो ये स्टेटमेंट रन होगी और उसके बाद वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब है कि इसके बाद कुछ भी चेक नहीं करना, दैट्स इट, इट विल एंड हेयर। ठीक है। और अगर ये मैच नहीं करती है तो इट विल गो टू द सेकेंड केस। केस 2 की वैल्यू और एक्सप्रेशन को मैच किया जाएगा। अगर सेम हो गया तो स्टेटमेंट सेकेंड वाली एग्जीक्यूट होगी और ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही इन केस दिस इज नॉट डन देन विल जंप टू केस 3, नेक्स्ट केस, एंड कीप ऑन चेकिंग ऑल दीज केसेस। तो ऐसे एक एक्सप्रेशन के मल्टीपल आंसर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, 10, 15, 20, 50 जितने भी हैं। आपको बार बार इफ डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली विल राइट द केस नंबर and the output and then we can simply put expression only once। ठीक है। तो ये मैच करता जाएगा और लास्ट में एक हम डालते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि इन केस ये एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी से भी मैच नहीं हुई तो ये डिफ़ॉल्ट में जाना है, फिर डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट रन होगी और ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। लेट्स टेक वन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखो ये क्लास का नाम आ गया, मेन फंक्शन का नाम आ गया। दिस इज डन ऑटोमेटिकली, वी डोंट बॉदर इट कि ये कैसे लिखना है। ये ऑटोमेटिकली जब आप जैसे ही ऐड अप करते हो कंट्रोल तो ये पहले आ जाती है चीज़ें, हमें सिर्फ यहाँ से कोडिंग करनी है इतनी। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन अ वेरिएबल टुडे। टुडे एक वेरिएबल लिया, इंट टाइप है मतलब उसमें इंटीजर वैल्यूज होंगी, नंबर्स होंगे। इक्वल टू 5 मतलब उसकी इनिशियल वैल्यूज 5 है। ठीक है। फिर एक स्ट्रिंग लिया डे और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, मतलब वो खाली है, ब्लैंक है। राइट। स्ट्रिंग मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट्स या ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। राइट। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट लिखी, स्विच में लिखा टुडे। टुडे की जो भी वैल्यू है, नाउ विल मैच दिस वैल्यू विद ऑल द केसेस। पहले टुडे की वैल्यू 1 से मैच होगी। टुडे की वैल्यू 5 थी, 5 और 1 मैच नहीं करते तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट विल ट्राई टू मैच द नेक्स्ट केस 2, ये भी नहीं मैच करता, 3 भी नहीं मैच करता, 4 भी नहीं करता, 5 करता है। ठीक है, both are value 5. So now what is the today's value and this 5 is matching, so we'll get this day is equal to Friday. So day नाम का जो वेरिएबल था जो खाली था, now it has a value Friday, and after that break is run. The break means we will not check anything afterwards, we will just move out of this particular switch statement. Switch statement यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इसके बाद कोई भी फर्दर चेकिंग नहीं होगी। ठीक है, ये 6, 7 उसने चेक नहीं करना, डिफ़ॉल्ट उसने चेक नहीं करना, विल मूव आउट हेयर। उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होगी, प्रिंट में डे की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हमारे केस में डे की वैल्यू फ्राइडे है, तो विल गेट फ्राइडे एज आंसर। राइट। So this is the working of a switch statement. Switch statement compares the expression with the value given after case. यहाँ पे हमेशा हम केस लिखते हैं और केस के आगे कोई ना कोई वैल्यू लिखते हैं। अब इसमें एक देर आर 1 or 2 थिंग्स वी मस्ट रिमेंबर कि स्विच में सिर्फ इक्वलिटी चेक हो सकती है। वी कैन नॉट चेक ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट इक्वल टू और इक्वल नॉट इक्वल टू वैल्यूज। वी कैन ओनली चेक दी वैल्यूज विच आर इक्वल टू सम वैल्यूज। टुडे की वैल्यू 1 के इक्वल है या नहीं है, सिर्फ यही चेक हो सकता है। इक्वालिटी वी कैन चेक, अगर आप चाहते हो कि टुडे की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या लेस देन है, दैट वी कैन नॉट डू इन स्विच। फॉर दैट वी हैव टू यूज इफ ओनली, जो हमने ऊपर किया था वो यहाँ पे हो सकता है इफ में, ग्रेटर देन, लेस देन। बट इक्वालिटी के लिए स्विच में सिर्फ इक्वालिटी चेक होता है। राइट। एंड सेकेंडली वन मोर थिंग, ये एक्सप्रेशन जो हम स्विच केस के अंदर डालते हैं, स्विच एक्सप्रेशन जो हैं, दिस एक्सप्रेशन कैन ओनली बी अ न्यूमेरिक और कैरेक्टर। मतलब इसमें इंटीजर वैल्यूज आ सकती हैं, नंबर्स विदाउट डेसिमल्स, और कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स। अगर आप डेसिमल वैल्यूज डालोगे इट विल गिव यू एन एरर, बिकॉज डेसिमल वैल्यूज को ये पिक नहीं करता है। सेकेंडली अगर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू डालते हो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, अगेन इट विल नॉट पिक एंड अगेन विल गेट एन एरर। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी इसकी ध्यान रखने वाली हैं। और
ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है. दीज आर इम्पॉर्टेंट एज फॉर योर एग्जाम इज कंसर्न. एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ. You have to write these two things. First of all, switch is only used for comparing equality. We cannot use switch to compare a greater value or lesser value, greater than equal or less than equal to, or we cannot write multiple expressions here. जैसे हमने ऊपर and लगा के दो expressions एक साथ लिख दी थी, यहाँ पे वो नहीं हो सकता. Secondly, switch can only be used to compare numeric or character values. Will not write numeric, will write integer and character values. It cannot be used to compare any decimal value, float value or double value or a string value. Fine. Strings can be used within the case. जैसे ये डे स्ट्रिंग था, ये हमने केस के अंदर यूज किया, बट यहाँ पे कंडीशन जहाँ डालनी है वहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल सकते. राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्विच और इफ के बीच में डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में आता है. प्लीज केयरफुल विद दिस. राइट. ये देखो, ये सिर्फ फ्राइडे प्रिंट हो गया. फाइन. अच्छा, एक इसमें और मैं बताता हूँ, एक और वेरिएशन है इसके अंदर. एक कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई अब हमारा यही क्वेश्चन ले लो, अगर ये केस 5 जहाँ लिखा है, हमारा केस 5 मैच करने पे फ्राइडे प्रिंट होता था, अगर हम ये ब्रेक ना लिखें, इफ दिस स्किप दिस ब्रेक, मान लो यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? इन दैट केस आंसर विल चेंज. इट विल नॉट बी फ्राइडे, इट विल बी सैटरडे. बिकॉज ब्रेक ना करने से क्या होता है, नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट है वो भी रन हो जाएगी. सो डे की वैल्यू यहाँ पे फ्राइडे हुई, यहाँ पे दोबारा से इट बिकम्स सैटरडे, उसके बाद ब्रेक हुआ तो the value of the day becomes Saturday and it will print Saturday here. ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है. In case the break statement is not written, that means we have to run the next statement also without matching the case. Right? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है तभी ख़त्म होगी, ये केस 5 के मैच होने के बाद ये कंडीशन तभी ख़त्म होगी जब ये ब्रेक स्टेटमेंट आएगा. ब्रेक नहीं आ रहा है तो इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग विच कम्स आफ्टर इट, ऑल द केस वैल्यूज. तो ये ब्रेक नहीं है तो ये एक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी, और मान लो अगर ये वाला ब्रेक भी नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी. यहाँ पे अगर ब्रेक आता है तो वो लास्ट वैल्यू वी गेट वाज संडे. और things we need to check is that day value was Friday, here it changed to Saturday, here it changed to Sunday. If these two breaks are not there, अगर ये दोनों breaks नहीं है तो day becomes Sunday. यहाँ पे अगर break आया तो the last value was Sunday, so it will print Sunday. Remember, वेरिएबल्स की जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू है वही पिक की जाती है, पुरानी वैल्यूज को वो इग्नोर कर देता है और ओवरराइट करता है. ठीक है ना. यहाँ पे फ्राइडे हुआ, यहाँ पे वो सैटरडे हुआ और संडे हो गया ये ब्रेक ना होने पे, तो लास्ट वैल्यू वाज संडे, सो इट विल प्रिंट ओनली संडे वैल्यू. राइट. ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं. फाइन. इस पे बेसिकली जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में दे विल नॉट आस्क यू डायरेक्टली कि इफ ब्रेक इज नॉट देयर व्हाट विल हैपन. दे विल सिंपली गिव वन एग्जांपल लाइक दिस. ऐसा एक एग्जांपल दे देंगे और बोलेंगे भाई इसका आउटपुट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा. और अगर आपने फ्राइडे लिख दिया देन इन केस ये ब्रेक निकाल दिया उन्होंने, ठीक है, दिस ब्रेक इज नॉट देयर, सो यू विल नॉट राइट फ्राइडे, यू विल राइट सैटरडे आंसर बिकॉज दिस ब्रेक इज नॉट देयर. फाइन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत बार एग्जाम में आया. फाइन. सो दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर. Okay, the next thing is repetitional structures. I think the time is running out, so we can do this next time. So I'll end up here.